بہت شکریہ مولانا محمد عارف اصلاحی صاحب کا، جنہوں نے فاضل مہاجر جناب ابو اسامہ اصلاحی صاحب کے لیکچر پر نہایت ہی مفید اور پرمغز تبصرہ کیا۔ اس محاضرہ کے دوسرے مبصر جناب ڈاکٹر علاء الدین خان صاحب ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں بلا تاخیر محترم سے گزارش کروں گا بسط ادب کہ وہ آئیں اور اپنے تبصرے سے بہرہبر فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آج کے اس محاضرے کے صدر پروفیسر عبدالعزیز اصلاحی صاحب، ہمارے بہت سے سینئر اور لائق احترام ڈاکٹر عنایت اللہ سبحانی صاحب، سامعین اور عزیز طلبہ، آج کا یہ موضوع اس لحاظ سے بہت ہی مفید ہے اور اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ پورے ہندوستان میں بڑی شد و مت کے ساتھ آن لائن تدریس پر کو عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر اسامہ ابھی آپ کے سامنے ایک اچھا لیکچر دے رہے تھے۔ ان کا جو ڈسپلین ہے، جس سبجیکٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ سبجیکٹ بھی سماج میں روزانہ پیش آنے والے مسائل، اس کے حل اور اس کو کیسے حل کر کے صحیح نہج پر لے جایا جائے، تو انہوں نے جب آن لائن تدریس کے نقصانات اور افادیت پر اپنا مقالہ تیار کیا، انہوں نے تاریخ کے وہ ساری چیزیں بھی دیکھی جس میں میگھالیہ اور اسی طرح سے جان ڈیوی اور ایک درکھیم، پورا نام ہو سکتا ہے میں نہ ادا کر پاؤں، وہ سماج سوشیولوجی سے اس کا تعلق ہے، ان سب کو بیس بناتے ہوئے اپنا مقالہ تیار کیا۔ اور انہوں نے اس مقالے میں آن لائن ایجوکیشن کے پس منظر میں سب سے پہلے تو فلسفہ تعلیم اور اس کے بعد نہج تعلیم اور پھر معاشرے میں کون سے ایسے مسائل ہیں جس سے ایک طالب علم کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس مسائل سے نکل کر اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسمی تعلیم کا ذکر انہوں نے کیا، تو بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے کیا، اس لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو میں اکثر سنتا بھی رہتا ہوں، ان کی تعلیمیں بھی پڑھتا ہوں، تو دھیرے دھیرے ان میں بڑی پختگی آ رہی ہے۔ ان سے آئندہ بڑی امیدیں ہیں۔ اللہ ان کے قلم میں اور جو ہے تعلیم میں اور ترقی دے اور اسی طرح سے یہ اچھی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے لاتے رہیں۔ اب آئیے، آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں جو کورونا وائرس میں تمام لوگوں کے سامنے آئے۔ ایک ٹیچر بھی پریشان ہوا، ٹیچر کے ساتھ ساتھ گارجین اور طالب علم بھی۔ یہاں صرف بات کرنی ہے ہم کو آن لائن تدریس کی افادیت اور نقصانات۔ جب کسی ایک پہلو پر افادیت اور نقصانات دونوں پہ بات کرنی ہو تو بہت ہی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم اس کے کون کون سے اچھے پہلو کو آپ کے سامنے رکھیں اور کن چیزوں کو ہم نقصانات کے زمرے میں لائیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ان کا لیکچر سنتے وقت میں نوٹ بھی کر رہا تھا اور ذہن بھی بنا رہا تھا کہ ہمیں آن لائن تعلیم سے کتنے نقصانات ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ابتدائی کلاسز میں ہیں، ان کے لیے کتنا نقصان ہے، کتنا فائدہ ہے۔ تو اگر ہمیں دیکھیں تو کووڈ-19 نے آن لائن تعلیم کو خاص طور سے ہمارے سماج میں رواج دینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے آن لائن تعلیم کے بارے میں نہ تو ہم جانتے تھے اور نہ اس طرح کا کوئی سابقہ پڑا تھا۔ ہندوستان کی بڑی یونیورسٹیز میں اور ہندوستان سے باہر دوسرے اداروں میں آن لائن تعلیم کا رواج پہلے سے تھا۔ ڈیجیٹل لائبریریز پہلے سے پائی جاتی تھی، ای بکس کے ذریعہ لوگ نالج حاصل کرتے تھے، لیکن کووڈ-19 میں ہر بچے کی زبان پہ آن لائن تدریس
वो ऑनलाइन तदरीस हर बच्चे की ज़बान से सुना जाने लगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन तालीम से फ़ायदा तो ज़रूर है, लेकिन ऑनलाइन तालीम जो छोटे बच्चों के लिए है वो एक बिल्कुल गैर फितरी अमल है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो अभी मुहादिर थे उसामा साहब, वो बिल्कुल उन बच्चों को भी अपने मज़ामीन में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं जिनको समाज में बड़े मसाइल से दो चार होना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान जो एक तरह से समाजी हैवान है, उसे मिलजुल कर रहने की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरे से वो अपनी चीज़ों को शेयर करता है, और ऑनलाइन तालीम में वो बच्चा जो अपने साथियों से सीखता है उससे बिल्कुल कट जाता है। वो अपने घर में पड़ा रहता है, उसका रब्त दूसरे लड़कों से नहीं होता, इसलिए सीखने में उसको दिक्कत आती है। इसलिए कि इंसान का दीगर इंसान से जब ताल्लुक होता है तो उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उस एक्सपीरियंस से वो दूसरा बहुत कुछ सीखता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लास रूम में बैठकर एक टीचर के सामने जब हम तालीम हासिल करते हैं तो उस वक्त हमें तालीम के साथ साथ तरबियत भी मिलती है, और तरबियत अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो ऑनलाइन तालीम में ये मौका ही नहीं मिलता कि एक उस्ताद किसी लड़के की तरबियत भी कर सके। इसलिए दूसरी चीज होती है, खास तौर से मैं मदरसे में खड़ा हूँ, मदरसे से ही मैंने तालीम हासिल की है, तो मदारिस की तालीम का और जो मदारिस का निसाब तालीम है और यहाँ जो दर्स और तदरीस का नहज है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर ऑनलाइन तालीम के नुकसानात हैं। वो नुकसानात इसलिए हैं कि एक मीनिंग को तलाश करने के लिए लुगत में एक लफ्ज की कितनी मीनिंग आती हैं उसके लिए कई लुगत हम लोग देखा करते थे और असातिज़ा कहते थे कि इनको देखो। ऑनलाइन तालीम का मामला है कि अगर हमको किसी लफ्ज में मुश्किल आई, हमने फौरन जो है उसे सर्च किया और उसका जवाब हमको मिल गया, तो वो जो तगोदो होती थी, वो जो तलाश जस्तजू होती है रस्मी तालीम में या क्लास रूम की तालीम में, वो तगोदो, वो जस्तजू, वो तजस्सुस हमें ऑनलाइन तालीम में नहीं मिल पाता। हर चीज आसानी के साथ हमें सजाकर दे दी जाती है, तो इस तरह ये नुकसान है। लेकिन उसी के साथ साथ फायदा भी है कि एक तो है कि लोगों से इख्तिलाफ नहीं होता, मुज़ाकरात और बात मुबाहसा नहीं होता, इसलिए ये सब जब मौका नहीं मिलता तो लड़के या जो तालिब इल्म है वो बहुत कुछ सीख भी नहीं पाता। लेकिन साथ साथ में ऑनलाइन तालीम के फ़वाइद भी हैं, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब कोई ऐसी वबा आ जाए जहाँ अपने घर में एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो जाए, ऐसे में तालीम को जारी रखना है तो ऑनलाइन तालीम के फायदे भी हैं, ताकि तालीम का जो प्रोसेस है, जो एक मुसलसल सीखने का अमल है, वो अमल रुकने ना पाए। इसलिए ऑनलाइन तालीम के फवायद भी हैं। ऑनलाइन तदरीस से अखलाकी खामियां भी आती हैं, लेकिन वही जैसा कि अभी उसामा ने फरमाया कि माचिस की तीली वो कई काम करती है। वो आपके लिए, उससे आप अच्छा काम भी ले सकते हैं, आप उससे जलाने का भी काम ले सकते हैं। तो ऑनलाइन तालीम से जहां एक तरफ हमें कहते हैं कि अखलाकी खामियां आ सकती हैं, वहीं उसे रोका भी जा सकता है और अखलाकी खामियों से बचा भी जा सकता है। जहां तक मदारिस इस्लामिया की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि मदारिस में हम अखलाकी पहलू पर भी जोर देते हैं कि इसका अखलाक अच्छा हो, एक अच्छा इंसान बने। तो जब ऑनलाइन तालीम में जाएंगे तो हम सिर्फ उस कंटेंट तक, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक तक अपने को महसूस कर लेंगे और वही टॉपिक पढ़ाकर हम ये समझेंगे कि हमने अपना फरीदा अदा कर दिया। वो जो तरबियत का और अखलाकी पहलू को सही करने का है वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह नुकसान है। और अगर इसको हटा दिया जाए तो फायदे हैं।
इसी तरह हमें कह सकते हैं कि ऑनलाइन तदरीस में जिस्मानी, ज़हनी, तिब्बी, माशी, नफ्सियाती मसाइल के सर उठाने का भी मौका मिलता है, इसलिए कि वो लड़का या वो तालिब इल्म बहुत आज़ाद है, उसके पास एक मोबाइल है, उससे वो आपके रूबरू तो उसमें है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी उंगली कहाँ पड़ रही है, वो क्या देख रहा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन तालीम से ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदा कम है, और बहुत सी ऐसी जदीद सहूलियत जो दुनिया में आ चुकी हैं, और वो लोग जो एक तरह से बहुत ही अमीर हैं, अमीर घराने से जो जिन तालिब इल्म का ताल्लुक है, उनके पास तो सारे वसाइल हैं, लेकिन इसमें वो पसमादा तबका जिसमें खास तौर से अभी रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ते हुए उन्होंने बहुत कुछ बताया था। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये मौजूद है कि मुसलमान सबसे पसमादा है। जब मुसलमान सबसे पसमादा है तो ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन तदरीस में वो सारे जो आलात चाहिए, जिन चीज़ों की सहूलत चाहिए, वो एक मुसलमान जो कि तालीम हासिल करना चाहता है उसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए उसके लिए ऑनलाइन तदरीस नुकसानदेह है। या तो वो तालीम छोड़ देगा, या फिर अगर वो तालीम हासिल करेगा तो अपने को सिर्फ इतना तैयार पाएगा कि वो क्लास रूम में रस्मी तालीम हासिल कर सके। इसी कोरोना वबा में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन तदरीस न दिलाने की वजह से स्कूल से वापस कर लिया, आज तक वो बच्चे स्कूल में नहीं पहुंचे। तो ऑनलाइन तदरीस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। NAP जो 2020 है उसकी तरफ भी इशारा किया था इन्होंने कि NAP 2020 कोरोना वायरस 2020 इस दोनों का कोई न कोई ताल्लुक है। इसका मतलब कि ऑनलाइन तदरीस के लिए पहले से जहन तैयार कर लिया गया, और फिर उस तरह के मसाइल लोगों के सामने आए एक वबा की सूरत में, और वहाँ मौका मिला कि ऑनलाइन तदरीस को आम कर दिया जाए। तो ऑनलाइन तालीम से सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को है जो सहूलियात से महरूम है, तो वो महरूम तबका नुकसान उठाएगा इससे। लेकिन एक चीज़ और मैं एक टीचर की हैसियत से यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो आजकल हालात हैं, मौजूदा हालात, उन हालात में क्लास रूम में पढ़ाना तो मुश्किल है। और वो ये कि अगर एक तारीख का उस्ताद सामने बैठे हुए कई मजहब से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम को किसी टॉपिक पे बता रहा है तो समझाने के लिए बहुत सारी चीजें उसे बतानी पड़ती हैं। और क्लास रूम तो ठीक है, वहां आप तक की चीज कोई वायरल नहीं होगी, तालिब इल्म ही सुनेगा, वो अपनी जबान से जाकर कहेगा। लेकिन वही चीज अगर हम ऑनलाइन तदरीस के दौरान समझाना शुरू कर दें तो वो वीडियो वायरल होगा, और उस वीडियो के वायरल होने में तारीख को तोड़ मरोड़ कर कहा जाएगा कि उस्ताद ने तारीख को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया है, इसलिए ये मुजरिम है, मुलजिम है और इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। तो इस तरह के मसाइल भी हैं ऑनलाइन तदरीस में, तो ये भी एक नुकसान है। लेकिन मैं पूरी तरह से ये नहीं कहता, फवायद भी हैं, नुकसानात भी हैं। अब उन्हीं में हमें मुतबादिल तलाश करना है कि जहाँ जहाँ फवायद हैं वहाँ तो हम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ नुकसानात हैं वहाँ पर बचने की कोशिश भी करें। तो ऑनलाइन तालीम में रवायती तालीम का मुतबादिल हमें बिल्कुल नहीं मिल पाता, इसलिए हम ऑनलाइन तालीम से इनकार न करते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि हमें इस दौर में मजबूत और मुतबादिल तालीमी निज़ाम की सूरत में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जो ऑनलाइन तदरीस और ऑफलाइन तदरीस दोनों के बीच की चीज़ हो, और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अपने निसाब में उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ले आएं। इसके अलावा NEP जो है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तो एक मुअम्मा है, आज तक वो समझ में नहीं आ पाया किसी के, चाहे वो दानिश्वर हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो,
कि ये गवर्नमेंट हमको किस तरफ ले जाना चाहती है। लोगों को तालीम याफ्ता बनाना चाहती है, या जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईजाद की और उसके जरिए बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हो रहा है, या फिर यह है कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए। इसी के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑनलाइन तालीम से एक नुकसान ये भी है कि असातिज़ा से रब्त व ताल्लुक़ खत्म हो जाता है, और जो तालीम के साथ तरबियत का तस्वुर है वो भी खत्म हो जाता है, नापैद हो जाता है। इसीलिए आज हर आदमी समाज में अच्छा इंसान नहीं पा रहा है, अच्छे इंसान नापैद होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन तालीम का तस्वुर अगर आम हो गया और इसी पर हम डिपेंड हो गए, तो फिर वो अच्छे इंसान हमें नहीं मिल पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन तालीम के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि आप जो है एक लाइब्रेरी में जाने का, असातिज़ा के सामने बैठकर सीखने का